Today we are doing some notes related to eigenvectors and some problem. Number 1. If A is any square matrix and P is any non-singular matrix of the same order. Same order means जो ऑर्डर का A होगा उसी ऑर्डर का P भी होना चाहिए. Then P inverse AP and A have same eigenvalues, but we cannot say it has same eigenvector. Same eigenvalue तो होंगे, ओके, बट हम ये नहीं कह सकते इन दोनों के पास P इनवर्स AP एंड A दोनों के पास सेम आइगन वेक्टर होंगे, ये हम नहीं बोल सकते. तो जब हम सिमिलर मैट्रिक्स कराएंगे अगेन ये रिजल्ट वहाँ फुलफिल होगा. प्रूफ भी हम इसका कराएंगे अभी, लेकिन जब सिमिलर मैट्रिक्स हम कराएंगे वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा. बट हियर वी कैन नॉट से P इनवर्स AP एंड A हैव सेम आइगन वेक्टर. सो इसका प्रूफ हम कर लेंगे, बट फर्स्ट हम इसके जितने भी हमारे पास नोट्स है वो लिख लेते हैं. नाउ नंबर सेकेंड, इफ A इज नॉन सिंगुलर then AB and BA have same eigen values. अगर A नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स है, तो AB and BA have the same eigen values. इसी में मैं ये भी कह सकता हूँ इसी नोट्स में, if B is non singular matrix then AB and BA have same eigen values. अगर B नॉन सिंगुलर होगा तब भी ये फुलफिल करेगा एंड A नॉन सिंगुलर होगा तब भी ये कंडीशन फुलफिल करेगी. इट मीन्स बोथ हैव सेम आइगन वैल्यूज. नंबर थर्ड, अब ये तो A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हो रहा है. अब यहाँ पे ध्यान रहे नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो ऑल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट, if A and B are two square matrices of the same order then AB and BA have सेम आइगन वैल्यू. ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप इजीली ये वाला क्या कह रहा है. सेकेंड नोट कह रहा है A अगर सिंगुलर हो मैट्रिक्स या B सिंगुलर मैट्रिक्स है तो AB एंड BA हैव सेम आइगन वैल्यूज. अब थर्ड के लिए A और B सिंगुलर नहीं चाहिए अब, ठीक है. ये कह रहा है AB आर एनी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो AB एंड BA हैव द सेम आइगन वैल्यू. दोनों के पास सेम आइगन वैल्यू होंगे, चाहे A इनवर्स दिया हो चाहे इनवर्स ना दिया हो, चाहे AB सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, ये सब के लिए, ठीक है. तो अगर आप थर्ड नोट अगर ध्यान रखें तो 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये तो हमेशा AB और BA के आइगन वैल्यू ऑलवेज सेम होंगे. प्रूफ कर लेते हैं इनके, आप खुद कर सकते हैं प्रूफ्स. ओके, तो फर्स्ट में क्या है, कह रहा है P इनवर्स AP एंड A हैव द सेम आइगन वैल्यूज. तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं जस्ट लेट lambda be an eigenvalue of P inverse AP, then there exists eigen vector x which satisfy the equation this one, or we can say P inverse AP minus lambda identity x is equal to 0. Both are same things. Now we say the characteristic equation for the P inverse AP is determinant of P inverse AP minus lambda I. Rather, we say the characteristic polynomial. This is the characteristic polynomial. If we took this equal to 0 then it gives the characteristic equation.
Now P inverse AP minus lambda I, this is determinant. So this can be written as PAP minus P inverse lambda I P. Okay, so lambda is scalar, we can take anywhere. So again, if P inverse P gives the identity, actually में this right hand side is equal to left hand side, both are same. So if this is determinant of P inverse, we can take common from the left P inverse, then this is A minus lambda I. Now we can take the common from the right, which is P. This is determinant. So we know the determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. So we write here determinants of this product. So since we know this is scalar, so scalar are always commutative. So P inverse determinant can be written here with P determinant inverse and P, because we know the determinant of P inverse is equal to inverse of determinant. So अब P इनवर्स कोई स्केलर का इनवर्स एंड स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 दे देगा यहाँ पे, बिकॉज हियर दे आर स्केलर. सो दिस इज A माइनस लैम्डा I. सो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ P इनवर्स AP is equal to characteristic polynomial of A. So if the characteristic equation are same, then the roots are same, so eigenvalue are same. Characteristic equation of P inverse AP is equal to characteristic equation of A, so the eigenvalue are same. Okay, now next second proof. सेकंड में क्या है, अगर A इनवर्स गिवन है, A भी अगर इन्वर्टिबल है, तो हमें शो करना है AB and BA have same eigenvalues. So given A is invertible or non-singular, if A is non-singular, then there must exist A inverse. A inverse AB A. A inverse AB A करने पे देखते क्या आ रहा है. A inverse matrix are always associative, so we can write this one. So this is identity BA. Identity gives the BA. So AB, A inverse AB A is equal to BA. ठीक है, और अभी अभी हमने नोट्स फर्स्ट से देखा this characteristic equation of this one is always equal to characteristic equation of this one. Therefore AB and BA have same characteristic equation, hence AB and BA have same eigenvalues. Note 1. Proof of number third. It say the eigenvalue of AB and BA are same. Okay. अब यहाँ पे जहाँ पे भी हम देख रहे हैं आइगन वैल्यू आर सेम है, इट डजेंट मीन कि आइगन वेक्टर भी सेम हो. वी कैन नॉट से, ओके, लेकिन वी कैन डेफिनेटली से इट हैज सेम आइगन वैल्यूज, बट वी कैन नॉट से अबाउट द आइगन वेक्टर. ये ध्यान रख लेना आप. सो हियर
we are showing the eigenvalue of AB and BA are same. देख लेते हैं इसका प्रूफ. Let lambda be an eigenvalue of AB. Suppose lambda be कोई AB का eigenvalue है. So then there exists eigenvector x which satisfy the equation ABX is equal to lambda x. Okay, column vector. Okay, column के फॉर्म में लिख रहे हो तो it means it is column vector. कुछ लोग इसको रो के फॉर्म में लिखेंगे तो it gives the row vector. तो जनरली कॉलम वेक्टर के फॉर्म में ही होता है. And of course this is the column matrix. So matrix are always associative. So we can write this one like this. मैट्रिक्स है एसोसिएटिव होल्ड हो रहा है तो ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं. ठीक है. लेट बी एक्स इज इक्वल टू सपोज कुछ नया वेक्टर y. ये जितना भी करेंगे b इंटू एक्स को करेंगे तो वो अगेन एक कॉलम वेक्टर आएगा जिसको नाम दे दिया हमने y. ठीक है. आप ऐसे देख सकते हो. सपोज ये x मेरा कॉलम वेक्टर है तो क्या हो रहा है b के जो एलिमेंट है इसका जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो वाइज कॉलम, रो को उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इसमें लिखा सेकेंड रो को उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई सेकेंड रो में. तो इस तरीके से आ रहा है. एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा, एक यहाँ आएगा, इस तरीके से ये एलिमेंट आएंगे. इट गिव्स द अगेन y is the column vector. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ay is equal to lambda x because bx is equal to y कर दिया मैंने. Suppose this is equation 1 कर लेते. This is equation 2. Okay. So pre-multiplying by b, क्योंकि हमें ab का आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा है. अब ba का आइगन वैल्यू करना है तो b से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 2 को किया है मैंने. सो bay इज इक्वल टू b lambda x and they are again associative, so we can write bay is equal to lambda is scalar, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ bx. so from here चलो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ a. from equation a, so again we have the value of bx, so this is ba y equals to lambda y from equation A. So BA y is nothing but the vector which is column vector. This is nothing but the eigen vector corresponding to lambda. So जो eigen value equation 1 में AB का है वही eigen value equation 3 में BA का है. So here lambda is an eigenvalue of BA. So जो lambda मेरा AB का है वही lambda BA का आ रहा है यहाँ. Of course यहाँ पे हम ये देख सकते हैं आइगन वेक्टर अलग है ना. इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में आइगन वेक्टर x है लेकिन इक्वेशन 3 में आइगन वेक्टर y है. यानी AB के लिए लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है बट BA के लिए लैम्डा के ही कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर y है. So here eigenvector are different but eigenvalues are same. तो यहाँ से ये भी हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यू तो सेम है बट आइगन वेक्टर्स आर डिफरेंट. Therefore AB and BA have same eigen values. कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं. बिफोर दैट जो हमने
रिजल्ट लिखवाए थे उनका आप एक बार जो आइगन वैल्यूज के हमने रिजल्ट लिखवाए थे उनका आप प्रूफ एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पे हमने कराया था लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर इस तरीके से हमने लिखा था तो लैम्डा स्क्वायर इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, है ना, और के लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ के ए, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टी हमने लिखे थे वो आप कर लीजिएगा एक बार। तो बहुत सिंपल है इसके प्रूफ, आप कैसे भी कर सकते हो इसको। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये गिवन है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से के इनवर्स के लिए भी था, ओके, एडजॉइंट के लिए भी था, वो आप एक बार ज़रूर कर लीजिए। एक बार इनका प्रूफ आप ज़रूर कर लीजिए, मैं नहीं कराऊंगा तो आप ज़रूर कर लीजिए। तो नहीं होता है, आपसे नहीं प्रूफ हो रहा है कोई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, तो देन मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में प्रूफ करा दूंगा।